اچھا جی، لاسٹ ٹائم اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہم نے یہاں تک کیا تھا، ڈیٹا بیس تک، اور اس سے آگے بات کرنی تھی. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس کے ریفرنس سے کچھ پریکٹیکل بات تھی جو یہیں سے بس میں سٹارٹ لے رہا ہوں. اچھا، آپ جب ڈی ایس سی پی 2012 میں سٹارٹ کریں گے، انسٹال کریں گے، تو اس کے بعد اگر سرور مینیجر آپ کو پوسٹ انسٹالیشن ٹاسک پرفارم نہیں کرنے دیتا فار اینی ریزن، جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تو آپ ڈائریکٹلی ڈی ایس سی پی کو ایگزیکیوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے سرور مینیجر آپ کو پوسٹ انسٹالیشن ٹاسک پرفارم نہیں کرنے دیتا. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایرر دے دیتا ہے، تو ڈائریکٹلی آپ ڈی ایس سی پی ایگزیکیوٹ کر لیں اور وہاں سے آپ اس کی آتھورائزیشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر لیں. یہ سب سے کنوینئنٹ طریقہ یہی ہے. یہ جناب ڈی ایس سی پی ایگزیکیوٹ ہو گیا. میں اس میں اچھا ایک مجھے ذرا چیز چیک کر لینا میں کہ کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو تو نہیں فیس ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ 20 ہے، یہ میں کنٹینیوس پین پہ لگا دیتا ہوں. اس کو ہم ڈی ایس سی پی کلائنٹ کر لیں گے. اوکے جی، یہ فی الحال تو انیشلائز اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو ہم یہاں سے ٹربل شوٹ کر سکتے تھے. اوکے، میں ادھر ڈی ایس سی پی ڈیٹا بیس اوپن کرتا ہوں. سی میں گئے، ونڈوز سسٹم 32 اور اس میں ڈی ایس سی پی. اوکے، یہ ڈی ایس سی پی کا ڈیٹا بیس ہے. یاد رکھیے گا ڈیٹا بیس میں جب بھی آپ انٹری کرتے ہیں تو انیشلی وہ انٹری ریکارڈ ہوتی ہے لاگ فائل میں، لاگ فائل میں لکھتا جاتا ہے، اور دین اس کو لاگ فائل سے جو ماڈیفیکیشن ہے انہیں شفٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس میں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی اسٹیج پہ اسے رول بیک کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ رول بیکنگ آسان ہوتی ہے. اور سیکنڈلی بلک اپڈیٹ کرتا ہے، یعنی ملٹیپل انٹریز ڈیٹا بیس میں، یعنی پہلے ٹرانزیکشن لاگ فائل میں، یہ جو لاگ فائل ہے J50.log، اس میں انٹریز کرتا ہے اور بعد میں ایک ہی اپڈیٹ میں وہ ساری انٹریز ڈیٹا بیس میں شفٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کوئی ایسا میکانزم بھی ہونا چاہیے جس سے اسے پتہ لگ سکے کہ کتنی ٹرانزیکشنز J50 میں لکھی ہوئی ہیں جو یہ ڈیٹا بیس میں شفٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شفٹ اس وقت کرتا ہے جب اس پہ لوڈ تھوڑا کم ہوتا ہے، اس وقت شفٹ کر دیتا ہے. تو اگر دوبارہ لوڈ ہو گیا تو رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نیکسٹ ٹائم جب اسٹارٹ لے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو J50 جو ہے یہ اس میں انٹریز ہوتی جاتی ہیں اور اس کا میکسیمم جو سائز ہے وہ 1 MB ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اسے نیکسٹ ٹائم پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے، تو یہ انفارمیشن اسے کون سی فائل بتاتی ہے؟ J50.ch کے. اسی لیے ہم اسے چیک پوائنٹ فائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چیک پوائنٹ فائل بتائے گی کہ کون سی ٹرانزیکشنز کمٹ ہو گئی ہیں اور کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے، کون سی ٹرانزیکشنز کمٹ نہیں ہیں. J50 لاگ فائل جب فل ہو جاتی ہے تو اسے وہ رینیم کر لیتا ہے اور جو نئی فائل بناتا ہے اس کا نام J50 ہی رکھتا ہے. اس لیے آپ کو ڈی ایس سی پی میں، یعنی اب یہ تو ڈی ایس سی پی فریش ہے نا، کوئی ڈی ایس سی پی جس جو کافی پرانا ہوگا اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. اس میں بھی ایک فائل نظر آ رہی ہے، یہ آپ کے سامنے J50 00010. کچھ بیک اپ ڈائریکٹریز میں بھی ہوں گی، یہ دیکھیں یہ شفٹ کر چکا ہے. تو بیسیکلی یہ اولڈ لاگ فائلز ہیں. یہ پہلے J50 تھی، ری نیم ہونے کے بعد اس کا نام یہ ہو گیا. اور باقی میں نے ریزرو لاگ فائلز کا بھی آپ کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آڈٹ لاگ ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے. تو ادھر آ جائیں. بیکنگ اپ اینڈ ریسٹورنگ اے ڈی ایس سی پی ڈیٹا بیس دیکھ لیں. ڈی ایس سی پی کا ایک بیک اپ تو آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے اور ڈی ایس سی پی خود ہی لیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم آن لائن بیک اپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈی ایس سی پی اگر کریش ہو جاتا ہے تو وہ بیک اپ تو اویلیبل نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ ڈی ایس سی پی کی ڈائریکٹری کے ہی اندر ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر ہم سرور میں ڈی ایس سی پی اوپن کریں تو یہ بیک اپ ڈائریکٹری ہے.
इसके अंदर एक न्यू की डायरेक्टरी होगी, इस न्यू डायरेक्टरी में बैकअप ये डीएचसीपी ने लिया हुआ है, ये डेटाबेस फाइल है, ये ओल्ड लॉग फाइल है, ठीक है। तो अगर डीएचसीपी क्रैश हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर तो आपके पास ये बैकअप भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये डीएचसीपी की ही लोकल डायरेक्टरी में अवेलेबल है। तो आप इसलिए डीएचसीपी का बैकअप खुद भी लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, ये क्या लिखा है बैकअप, एंड देन लोकेशन बता देता हूँ, वहां बैकअप हो जाएगा। तो वो स्लाइड में कह रहा है कि डीएचसीपी का बैकअप लेके उसको ऑफलाइन स्टोर करें, ये देखें। The DHCP service automatically backs up the DHCP database to the backup directory on the local drive, ठीक है। ये तो हो गया ऑनलाइन बैकअप। उसके बाद अगर ये क्रैश हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ही डीएचसीपी इसको रिकवर करने की कोशिश करता है, प्रोवाइडेड के प्रॉब्लम डेटाबेस में आई है, सर्वर चल रहा है, सर्विस भी चल रही है, ठीक है। if the original database is unable to load, the DHCP service automatically restore from the backup directory on the local drive. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इस बैकअप को आप ऑफलाइन स्टोरेज में रखें, ठीक है। तो इसका फायदा ये होगा कि जाहिर है ये बैकअप एक्सटर्नली रखा हुआ होगा, अगर डीएचसीपी क्रैश हो जाता है तो इसे आप वापस ला सकते हैं। The administrator moves a copy of the backed up database to offline storage. In the event that the server hardware fails, the administrator can restore the DHCP database only from a offline storage location. यानी पहले एडमिनिस्ट्रेटर नया डीएचसीपी इंस्टॉल करेगा और उसके बाद उस सर्वर पे बैकअप जो हुआ था उसे रीस्टोर कर देगा, ठीक है। ये आपके पास दो ऑप्शंस थी, ऑनलाइन बैकअप और ऑफलाइन बैकअप। रिकंसाइलिंग अ डीएचसीपी डेटाबेस। अब सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिकंसाइलिंग है किस लिए। देखें, रिकंसाइलेशन की तो जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब इंफॉर्मेशन मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर हो। रिकंसाइल का मतलब होता है दो चीजों को कंसिस्टेंट करना, एक जैसा करना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि डीएचसीपी जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, लीजिंग इंफॉर्मेशन, वो दो जगहों पे स्टोर कर रहा है, एक तो डेटाबेस पे और एक रजिस्ट्री में। और ये देखें, इसने बताया भी है यहाँ पे कि डेटाबेस कंटेन्स डिटेल्ड आईपी एड्रेस लीज इंफॉर्मेशन, और समरी कहाँ पे है, समरी आईपी एड्रेस लीज इंफॉर्मेशन ये रजिस्ट्री में, ठीक है। कंपेयर्स एंड रिकंसाइल्स इनकंसिस्टेंसीज इन द डीएचसीपी डेटाबेस। अगर डीएचसीपी डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और ये अक्सर उस वक्त ये प्रॉब्लम आएगी जब आप बैकअप को रिस्टोर करेंगे, तो फिर आप इसे कंसिस्टेंट करते हैं। कंसिस्टेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप डीएचसीपी में जाएं, चाहे IPv4 पे राइट क्लिक कर दें, यहां होगा रिकंसाइल ऑल स्कोप्स, चाहे आप राइट क्लिक कर दें स्कोप पे तो एक स्कोप को रिकंसाइल करेगा, ठीक है। रिकंसाइल पे क्लिक करें और यहां पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करें, और उसके बाद अगर मैसेज आ जाता है डेटाबेस इज कंसिस्टेंट, तो ये आइडियल मैसेज है, डेटाबेस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है दोनों लोकेशन जो है उन पे सेम इंफॉर्मेशन है। तो इसकी एट टाइम जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्री अगर कुछ और, ये देखें वो कहता है, एग्जांपल इसने दिए कि रजिस्ट्री क्लाइंट हैज आईपी एड्रेस दिस, जबकि डेटाबेस क्या कह रहा है कि आईपी एड्रेस दिस इज अवेलेबल, यानी एक ही आईपी है जिसके बारे में रजिस्ट्री कहती है कि ये इन यूज है और डेटाबेस कहता है कि ये इन यूज नहीं है, ये अवेलेबल है, ये किसी और क्लाइंट को लीज किया जा सकता है। जब आप रिकंसाइल करेंगे तो लीज एंट्री इज क्रिएटेड इन डीएचसीपी डेटाबेस, यानी रजिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में भी आ जाएगी। डीएचसीपी डेटाबेस को मूव करने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। मूव करना है तो उसको आप कॉपी करके जो नई लोकेशन है वहां पेस्ट कर दें। ये देखें, बैकअप मीडिया उस पर आपने रखा, ये सर्वर अगर क्रैश हो जाता है तो देन न्यू डीएचसीपी सर्वर, और उस पर आपने वो डेटाबेस मूव कर दिया, ठीक है। डीएचसीपी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो प्रॉब्लम करे, और डीएचसीपी ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं है जिसके क्रैश होने की वजह से फौरी तौर पे आप कोई डाउन टाइम एक्सपीरियंस करें। उसकी वजह यह है कि क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस डीएचसीपी दे रहा है वो लीज पे दे रहा है, तो अगर डीएचसीपी अवेलेबल नहीं भी होता तो क्लाइंट वो एड्रेस यूज करता रहेगा, तो आपके पास इतना टाइम होगा। अगर मैं डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन कंसिडर करूं तो आपके पास 4 डेज हैं जिनमें आप डीएचसीपी को ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो डीएचसीपी की वजह से कोई डाउन टाइम एनवायरनमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर डीएचसीपी की जगह डीएनएस हो तो शायद आपके पास टाइम, शायद क्या यकीनन फिर आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होगा, आपको क्विकली उसे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। लेकिन डीएचसीपी इज नॉट वन ऑफ दोज एप्लीकेशन जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डाउन टाइम आए।
ये जनाब इसने रिस्टोर किया है। ओके जी, सिक्योरिंग एंड मॉनिटरिंग डीएचसीपी, ये देख लें। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएचसीपी के एनवायरनमेंट को सिक्योर किस तरह करना है और अनऑथोराइज क्लाइंट्स को किस तरह फोर्स करना है कि वो लीज ना ले सकें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जरा कंफर्म कीजिएगा। जी आ रही है। ठीक है, ठीक है। ओके जी, सिक्योरिंग एंड मॉनिटरिंग डीएचसीपी, इस लेसन में हम डीएचसीपी की मॉनिटरिंग देखेंगे और कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये पता होना चाहिए कि डीएचसीपी का जो बिहेवियर है वो क्या है और डीएचसीपी एनवायरनमेंट को प्रॉपरली सर्विस कर रहा है, और इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो आप उसे टाइमली फैशन में ट्रबल शूट कर सकें। तो सबसे पहले है प्रिवेंटिंग एन अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लीज। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि डीएचसीपी सिर्फ उस क्लाइंट को एड्रेस दे जो हमारा इंटेंडेड क्लाइंट है, यानी कोई गेस्ट कंप्यूटर आपके एनवायरनमेंट में आता है और वो लैपटॉप अपना प्लग इन कर देता है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं उस गेस्ट को आईपी ना मिले, तो इस केस में डीएचसीपी टेक्नोलॉजी हमारी किस तरह हेल्प करती है और क्या वो हेल्प प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं। इसका आंसर प्रैक्टिकली, इसका जो आंसर है वो तो ये है कि डीएचसीपी जो इसका सोल्यूशन आपको दे रहा है वो सोल्यूशन इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करने के रेफरेंस से। इसका जो सही सोल्यूशन है वो यही कि आप डीएचसीपी के थ्रू नहीं बल्कि आप अपने एनवायरनमेंट में और दूसरी चीजें हैं जिनको हम यूज करते हुए इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डीएचसीपी के पास सिर्फ एक मींस है जिससे डीएचसीपी क्लाइंट को रोक सकता है फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ लीज, और वो है आप इस पे फिल्टर इंप्लीमेंट करें, अलाउ फिल्टर और डिनाई फिल्टर। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, उसके बाद ये डिस्कशन आसान हो जाएगी कि मेरे पास इस वक्त ये डीएचसीपी सर्वर है। इस वक्त ये तो पुराना लीज है, हम क्लाइंट पे जाते हैं और इस क्लाइंट को भी हम डीएचसीपी इनेबल कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल ये स्टैटिक आईपी पे है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, एडाप्टर सेटिंग्स चेंज की और मैंने यहाँ पे बता दिया कि ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये डीएचसीपी के पास जाएगा एड्रेस लेने। ठीक है, हम डीएचसीपी पे आ जाते हैं, बल्कि यहीं हम वेरीफाई करते हैं कि क्या इसको एड्रेस डीएचसीपी ने दे दिया है। जी, इसको डीएचसीपी ने एड्रेस दे दिया। आप डीएचसीपी सर्वर पे चेक करें, यहाँ रिफ्रेश करें तो ये एड्रेस आपको नजर आ रहा है जो इसने क्लाइंट को दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इशू ये है कि मैं अगर चाहता हूं कि इस तरह से ना हो कि क्लाइंट आए और डीएचसीपी उसे एड्रेस दे दे, तो उसके लिए हमारे पास जो डीएचसीपी में मेथड है दैट इज फिल्टर्स। ये फिल्टर्स, अलाउ फिल्टर, डिनाई फिल्टर, इस वक्त दोनों फिल्टर इनएक्टिव हैं, डिसेबल्ड हैं। और क्योंकि दोनों, ये आपको रेड मार्क डाउनवर्ड नजर आ रहा होगा ना, इस क्रॉस की बात नहीं कर रहा, ये क्रॉस तो इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज डिनाई फिल्टर। ये जो छोटा सा रेड मार्क डाउनवर्ड नजर आ रहा है, दिस इंडिकेट्स कि ये दोनों फिल्टर इस वक्त डिसेबल्ड है। अभी आपने देखा क्लाइंट को इसने फॉरेन आईपी एड्रेस लीज कर दिया, लेकिन अगर मैं ये फिल्टर इनेबल कर देता हूं, ये मैंने इनेबल कर दिया फिल्टर, अब क्लाइंट को एड्रेस नहीं मिलेगा जब तक मैं फिल्टर में उसका एड्रेस ऐड नहीं करवाता। देखें, अब आप रिलीज करें, ये रिलीज हो गया। हम सर्वर पे से वेरीफाई करते हैं, सर्वर पे मैं लीजेस में जाके रिफ्रेश करता हूं तो अब देखें यहाँ से एड्रेस वैनिश हो गया। ठीक है, अब मैं क्लाइंट साइड पे जाता हूं और रिन्यू करता हूं, ये मैंने रिन्यू किया। अब डीएचसीपी के पास जो लिस्ट है उसमें वो एड्रेस, ये लिस्ट में कोई भी मैक मैंने ऐड नहीं करवाया। ये देखें, लीज में एड्रेस नहीं आ रहा, क्लाइंट को एड्रेस नहीं मिल रहा। वजह उसकी बड़ी सिंपल सी है कि क्लाइंट का एड्रेस जो है वो उसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। अगर हम डीएचसीपी के स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें भी इंडिकेट होगा कि डिस्कवरीज तो रिसीव हो रही हैं लेकिन ये ऑफर नहीं कर रहा। ये देखें, डिस्कवर्स कितने हैं, 5, और ऑफर में क्या आ रहा है, 1 ऑफर। वो वही प्रीवियस ऑफर है जिसमें क्लाइंट को इसने एड्रेस दिया था। अब ये क्लाइंट को एड्रेस नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस क्लाइंट का मैक एड्रेस डीएचसीपी में ऐड करवाना होगा। ठीक है, तो इसे हम रोकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं /all पाइप साइन के साथ मोड़ लगाते हैं। ये एड्रेस आ रहा है 000C29,
تو یہ میں دے دیتا ہوں DHCP میں فلٹرز میں جاتا ہوں, الاؤ فلٹر پہ رائٹ کلک کرتا ہوں, نیو فلٹر 000C29, اور جو باقی لاسٹ 3 ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہیں جناب 3999D 3999D. یہ میں نے فلٹر ایڈ کروا دیا, ٹھیک ہے, کلوز کریں. اب آپ کلائنٹ سائٹ پہ جائیں, ایڈریس یا تو مل گیا ہوگا یا یہ بھی لے لیتا ہے, رینیو کریں. یہ جناب رینیو کیا, اب اسے ایڈریس مل جانا چاہیے کیونکہ آپ نے DHCP پہ فلٹر میں اس کا میک ایڈ کروا دیا, پرووائڈڈ کے میک بالکل ٹھیک ٹھیک ایڈ کروایا. یہ دیکھیں ایڈریس اسے DHCP نے دے دیا. تو بیسیکلی یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ DHCP پہ فلٹر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح تو مجھے سارے دینے پڑیں گے, تو آل دو آپ کی جو بات ہے یہ صحیح ہے, لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ, کیونکہ ایک وینڈر کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان سب میں اسٹارٹ کی جو 6 ڈیجٹس ہیں وہ سیم ہوتے ہیں, تو یہ آپ دے دیں, باقی وہ اسٹیرک ایڈ کر لے گا خود ہی. ڈال دیں اسٹیرک, یہاں پہ آپ اسٹیرک ڈال دیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس نے اسٹیرک خود ایڈ کر لی. تو اب بھی یہ ایڈریس دے دے گا, یہ صرف اسٹارٹ کے جو 6 ڈیجٹس ہیں وہ دیکھے گا جو کمپنی اسپیسیفک ہوتے ہیں. ریلیز کریں اور رینیو کریں, ایڈریس کلائنٹ کو مل جائے گا, کیونکہ اب DHCP نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کے NIC کا جو وینڈر کوڈ ہے وہ میچ کرتا ہے. ایز لانگ ایز کے میچ وہ کوڈ ہے, جو کوڈ ہے کمپنی کوڈ ہے وہ میچ کرتا ہے, یہ ایڈریس دے دے گا. تو اگر آپ کی کمپنی میں ایک ہی وینڈر کے ایک ہی ماڈل کی مشینز لگی ہوئی ہیں تو سب پہ میکس سیم ہوگا. اگر 2 یا 3 قسم کی ہیں تو آپ چلیں 2 یا 3 کوڈز ایڈ کروا دیں گے. لیکن اگین دس از ناٹ اے پریکٹیکل سولوشن. جب ہم پریکٹیکل ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی کمپلیکسٹیز ہیں. تو اینی ہاؤ سنیں اب مائکروسافٹ کیا کہتا ہے. ٹو پریونٹ این unauthorized computer from obtaining a lease, ensure that unauthorized user do not have physical or wireless access to your computer. ٹھیک ہے, اب یہ جو اس نے بات کی ہے اس میں DHCP has nothing to do. DHCP تو اس چیز کو میک شور نہیں کر سکتا نا. فزیکل ایکسیس کے لیے تو آپ کو اپنے نیٹ ورک کا لے آؤٹ ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کے نیٹ ورک کے جو کنیکٹیوٹی پوائنٹس ہیں وہ ایکسپوز نہ ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے, یہ DHCP نے نہیں دیا. اس کے بعد انیبل آڈٹ لاگنگ فار ایوری DHCP سرور آن یور نیٹ ورک. آڈٹ لاگنگ انیبل کریں, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ لگتی جاتی ہے. آڈٹ لاگنگ کیسے انیبل ہوگی, آپ DHCP سرور اوپن کریں اور DHCP سرور میں اگر میں سرور پراپرٹیز میں جاؤں, ٹھیک ہے, تو نہیں یہ سوری ڈیٹا بیس پاتھ ہے, آپ IPv4 کی پراپرٹیز میں جائیں اور اس کے بعد آ جائیں ایڈوانس میں, تو یہ لکھا ہوا ہے آڈٹ لاگ فائل پاتھ. ٹھیک ہے, اور آڈٹ لاگنگ انیبل ہوتی ہے. اگر ابھی میں جا کے چیک کروں تو آڈٹ لاگ میں ساری ڈیٹیلز آ رہی ہوں گی, جو بھی کچھ اس سرور پہ ہوا ہے وہ اس میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں, اس لاگ کو اوپن کریں, یہ آج کا لاگ ہے منڈے کا, اس کو میں اوپن کروں, ٹھیک ہے, یہ کوڈز لکھے ہوئے اور یہ نیچے ڈیٹیلز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کوڈ کون سا ہے, 24 کوڈ کا مطلب کیا ہے, IP ایڈریس کلین اپ آپریشن بگن. اس کے بعد لکھا ہوا ہے 25 کا مطلب کیا ہے, یہ جناب 25 IP ایڈریس کلین اپ اسٹیٹسٹکس. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ اسٹاپ بگن, یہ تو ڈیٹ اس کی چیک کرنا ہے نا مجھے, منڈے فیبرری. اچھا یہ دیکھیں نا اس کی ڈیٹ ایک دن پیچھے ہے, تو آپ لاگ جو ہے وہ چیک کریں فرائیڈے کا, اس پہ کیا ہے سنڈے کا, سوری آپ سنڈے کا لاگ چیک کریں, اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی, کیونکہ ہم نے جو ابھی کچھ کیا ہے وہ نظر آنا چاہیے نا. یس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کوڈ چیک کر لیں, 11 کا مطلب ہے a lease was renewed by a client. ٹھیک ہے, تو یہاں اب آپ دیکھیں یہ 11 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس نے جو ڈینائی کیا تھا وہ یہ دیکھیں, یہ اسائن ہے, یہ رینیو ہے. ٹھیک ہے, DNS اپڈیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ڈینائی کا بھی میسج آتا ہے, وہ نیپ کے لیے ہوتا ہے اگر نیٹ ورک ایکسیس پروٹیکشن آپ نے کنفیگر کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہے کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ابھی اس نے کلائنٹ کو IP دیا تھا 11, تو یہ ڈسپلے کر رہا ہے 11 IP win8.mcac2.com کو سائن ہو گیا. تو آڈٹ لاگ انیبل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے, واٹس گوئنگ آن. اس کے بعد
रेगुलरली चेक एंड मॉनिटर ऑडिट लॉग फाइल, जिस तरह मैंने अभी चेक किया ये आप भी चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बहुत यूजफुल है, यूज 802.1x enabled LAN switches और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स टू एक्सेस द नेटवर्क। देखें 802.1x जो है वो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पे अगर आपके स्विचेस और वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स बेस्ड करते हैं, नॉर्मली जितने भी नए वेंडर हैं वो इसकी सपोर्ट देते हैं, चाहे आप सिस्को का स्विच यूज कर रहे हैं या जेनेपर का, उसमें इसकी सपोर्ट होती है। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अपना लैपटॉप उस पोर्ट पे अटैच करे तो वो स्विच उस पोर्ट को एक्टिवेट करने से पहले उससे ऑथेंटिकेशन लेगा। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप ऑथेंटिकेशन किस तरह की कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि उसे यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, उसका लैन जो है वो जस्ट प्लग इन पे एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अगेन दिस इज एन आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बिकॉज DHCP इज नॉट प्रोवाइडिंग 802.1x सपोर्ट। ठीक है, ये DHCP का काम नहीं है। 802.1x तो है ही उन डिवाइसेस के लिए जो लेयर 2 पे कनेक्टिविटी दे रही होती है। उसके बाद कॉन्फ़िगर NAP टू वैलिडेट दैट अ क्लाइंट कंप्यूटर इज कंप्लायंट विद सिस्टम हेल्थ रिक्वायरमेंट। वो कहता है कि एक चीज विंडोज में है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, आपके कोर्स में है, हम इसे स्टडी करेंगे। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन में ये एबिलिटी है कि वो सिस्टम की हेल्थ चेक कर सकता है। यानी अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई लैपटॉप अपना प्लग इन करता है तो नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन उसे चेक कर सकता है कि उस पे विंडोज अपडेटेड है, सारे पैचेस हुए हैं, उस पे फायरवॉल ऑन है। ठीक है, और अगर उसकी हेल्थ रिक्वायरमेंट एज पर योर डिफाइंड पॉलिसी नहीं होगी तो फिर उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है जहां पे वो फ्रीज रहता है, फ्रीज स्टेट में रहता है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप नैप पॉलिसी क्या बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं DHCP को कॉन्फ़िगर करें कि वो नैप के साथ कोऑर्डिनेट करके क्लाइंट को नेटवर्क में इन होने दे। किस तरह होता है मैं आपको दिखा देता हूं। आप सिंपली DHCP ओपन करें और DHCP में अपनी स्कोप की प्रॉपर्टीज में जाएं, चाहे IPv6 की प्रॉपर्टीज में जाएं, V4 की, और ये आपके सामने नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, इनेबल ऑन ऑल स्कोप्स, या तो ये आप यहां से कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिवली अगर आप स्कोप की प्रॉपर्टीज में भी जाएं तो वहां भी ये ऑप्शन डिस्प्ले होती है, ये नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप फिलहाल डिसेबल है ये, अगर आप चाहें तो आप इनेबल करके और यहाँ पे जो आपने नैप प्रोफाइल बनाया है उसका नाम दे दें। ठीक है, या आप ये सेलेक्ट कर दें यूज डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन प्रोफाइल। जब हम नैप कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम इसे भी देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर मैं ये कर दूं तो ये क्लाइंट को एड्रेस नहीं देगा, क्योंकि जाहिर है ये नैप को ढूंढने जाएगा, इसे नैप नहीं मिलेगा, रिजल्ट ये होगा कि ये क्लाइंट को IP एड्रेस नहीं देगा। तो एक आपके पास नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन की भी ऑप्शन है फॉर कंट्रोलिंग IP लीज इंफॉर्मेशन। ओके जी, देन वो कहता है रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथोराइज्ड नॉन माइक्रोसॉफ्ट DHCP सर्वर फ्रॉम लीजिंग IP एड्रेसेस। प्रीवियस स्लाइड में हम रोक रहे थे क्लाइंट को, अब हम बात कर रहे हैं सर्वर की। यानी अगर आपके एनवायरनमेंट में कोई मल फंक्शन कंप्यूटर, उस पे मल फंक्शन नहीं कहता मैं, इसको भी हम इस तरह से सोचते हैं कि लाइक कोई हैकर, कोई इंट्रूडर आपके एनवायरनमेंट में अपना लैपटॉप प्लग इन करता है और उसके लैपटॉप पे DHCP की सर्विसेज इंस्टॉल है, तो वो तो गलत एड्रेसेस देना शुरू कर देगा ना, और फिर इस तरह से वो क्लाइंट का जो ट्रैफिक है उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू कर सकता है। तो टू एलिमिनेट एन अनऑथराइज्ड DHCP सर्वर यू मस्ट लोकेट इट एंड देन ईदर फिजिकली डिसेबल इट और डिसेबल द DHCP सर्विस। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग ऑन द नेटवर्क। अगेन अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन DHCP बेस्ड नहीं है। DHCP में कुछ नहीं करना, जो ऑथोराइजेशन की ऑप्शन है वो है, लेकिन वो उस वक्त है जब उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड हो, और सेकेंडली वो यानी उसमें भी कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं, क्योंकि जाहिर है अगर वो अपने कंप्यूटर पे, वो जो इंट्रूडर है वो अपने ही कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल कर लेता है, तो फिर उसका जो DHCP होगा वो उसकी एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथोराइज होगा, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी से नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने वो केस डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे इसने केस डिस्कस किया है विदाउट ADS। तो इसमें अगेन आपका नेटवर्क फिजिकली सिक्योर हो, यानी किसी के पास ये चॉइस ना हो कि वो आके और अपना लैपटॉप जो है इस तरह से आपके एनवायरनमेंट में प्लग इन कर दे। आप फिजिकली एनवायरनमेंट को सिक्योर करें, आपके जो वॉल प्लेट्स हैं वो सिक्योर हों, आपके जो
एक्सेस पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली सिक्योर हों, किसी के पास ये लिबर्टी ना हो कि वो अपने डीएससीपी को या अपने कंप्यूटर को फिजिकली इन्वायरमेंट में प्लग इन कर सके। डेलीगेटिंग डीएससीपी एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, डीएससीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप और डीएससीपी यूजर्स ग्रुप, ठीक है। टू डेलीगेट हु कैन एडमिनिस्ट्रेट द डीएससीपी सर्विस, लिमिट द मेंबरशिप ऑफ द डीएससीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप, ठीक है। किसी यूजर को अगर आप डीएससीपी एडमिनिस्ट्रेटर्स में ऐड करवा लें तो उसके पास ये एबिलिटीज आ जाती हैं कि ही और शी कैन व्यू एंड मॉडिफाई एनी डाटा अबाउट द डीएससीपी सर्वर, ठीक है। तो आप इसकी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड रखें। इस ग्रुप के मेंबर्स उन्हीं यूजर को बनाएं जो डीएससीपी की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। Then add users to DSCP users group if they need read-only access to the DSCP console. Like कुछ आपके यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने DSCP का लॉग व्यू करना है, जिन्होंने लीजिंग इन्फॉर्मेशन व्यू करनी है लेकिन उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं करनी, तो उनको आप DSCP यूजर्स ग्रुप में ऐड करवा लें। उनके पास एबिलिटी क्या होगी, दिन वो रीड ओनली एक्सेस होगी, ठीक है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप विल हैव रीड ओनली एक्सेस ऑन DSCP कंसोल, ठीक है। तो क्योंकि रीड ओनली एक्सेस होगी इसलिए वो कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। ये जनाब डीएससीपी स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर कई दफा दिखाए। आप IPv4 पे राइट क्लिक करें और फर्स्ट ऑप्शन होती है उस पर क्लिक कर दें तो वो आपको बताएगा कितने डिस्कवर्स हैं, ऑफर्स हैं, रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट्स हैं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स हैं, डिक्लाइंस हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डीएससीपी स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड एट ईदर द सर्वर लेवल और स्कोप लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल्स हैं, आप सर्वर पे भी देख सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त डिस्प्ले हो रही है ये सर्वर स्टैटिस्टिक्स हैं, दोनों एक जैसे नहीं होंगे, दोनों मुख्तलिफ होंगे। अगर मैं स्कोप पे देखूं तो स्कोप पे तो बस ये बताएगा कितने एड्रेसेस अवेलेबल हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। अवेलेबल एड्रेस ये हो गए, ये इन यूज हैं, ये टोटल हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वर लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट इज क्वाइट यूजफुल, क्योंकि उसमें जो डिटेल है वो ज्यादा है, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां से आप इसे देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो डिस्प्ले हो रही है। और इसको रिफ्रेश कितनी देर में कर रहा होता है ये तो आप मैनुअली कर रहे हैं। वैसे सर अगर आप IPv4 प्रॉपर्टीज ओपन करें तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट स्टैटिस्टिक्स यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि कितनी देर कितने टाइम के बाद ये इस इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश करेगा। इसी तरह मैं ओपन करता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स और यहाँ मैं वो आपको बेसिकली ग्रुप्स दिखाना चाहता हूँ। बिल्ट इन में जाएं, अब तो DSCP ट्यून हो गया है। That is quite surprising. चलें इस पर बात करेंगे ग्रुप क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहे, क्योंकि या बिल्ट इन कंटेनर में होने चाहिए थे या यूजर्स कंटेनर में होने चाहिए थे, DSCP एडमिनिस्ट्रेटर्स और DSCP यूजर्स ग्रुप। ओके जी, ऑडिट लॉग मैंने आपको बताया कि ऑडिट लॉग जो है वो DSCP की टोटल जो एक्टिविटी है वो आपको बताता है और ये लॉग जो है ये आपके पास क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली और अपडेट भी होता रहता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इवेंट नंबर 00 नजर आएगा जो इंडिकेट करेगा द लॉग वाज स्टार्टेड, और लॉग फाइल के एंड पे 01 होगा जो इंडिकेट करेगा कि लॉग वाज स्टॉप, और एनीथिंग इन बिटवीन जो है वो उसकी DSCP की प्रोसेसिंग जो है उसे इंडिकेट करेगा कि DSCP क्या काम करता रहा है, ठीक है। तो एक तो ये लॉग फाइल है, ये बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि सम टाइम अगर एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल कोई अनप्लेजेंट एक्टिविटी हुई है और आप उसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपने ये देखना होता है कि किसी खास टाइम पे एक पर्टिकुलर IP किससे असाइन था, क्योंकि DSCP IPs तो चेंज करता रहता है ना। तो अगर आपको जो आपने मॉनिटरिंग की है उसमें एक IP इंडिकेट हुआ है कि इस IP से कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है
ہو سکتا ہے کرنٹلی وہ آئی پی جس کمپیوٹر پہ اسائن ہو اس کمپیوٹر سے وہ ایکٹیویٹی نہ ہوئی ہو، بلکہ وہ ایکٹیویٹی کل پرفارم ہوئی تھی، انپلیزنٹ ایکٹیویٹی، اور اس وقت وہ آئی پی کسی اور کے پاس تھا. تو بیسیکلی یہ لاگ فائل آپ کو بتا دے گی کہ کسی بھی گیون ٹائم میں ایک آئی پی کس کمپیوٹر پہ یوز ہو رہا تھا. ایک منٹ، یہاں تک تھے ہم. اوکے، ایڈریس کنفلکٹس، یہ ڈسکشن ہے، یہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ نے اسے اسٹڈی کرنا ہے، اور اسی طرح جس طرح ہم نے پریویس ڈسکشن نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی وہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ یونٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ وہ ڈسکشن ہے جس کی بیس پہ آپ نے وہ جو کوشچنز ہیں ان کا آنسر دینا ہے. یہ یونٹ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ لیب کا ریویو ہے. ہم اب نیکسٹ یونٹ پہ آ جاتے ہیں. یہ پرابلی اس نے گروپ اس لیے نہیں ڈسپلے کی ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر جو ہے ڈی ایس سی پی کے ساتھ ساتھ ڈی سی بھی ہے. تو ڈی سی پہ تو ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں ڈیلیگیٹ کرنے کے. اچھا جی، یونٹ 7 ہے امپلیمنٹنگ ڈومین نیم سسٹم. ڈی این ایس پہ بات ہونی ہے، اور ڈی این ایس ویری 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 امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈی این ایس جو ہے اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے. ڈی این ایس کے یونٹس بھی ایک سے زیادہ ہیں، کافی زیادہ اسپریڈ ہوا ہے یہ تھرو آؤٹ دا کورس. تو کوشش کرنی ہے کہ اس کی اچھی گرپ آپ کو مل جائے، کیونکہ ڈی این ایس اگر آپ پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کی ہیلپ آپ کو ایکٹیو ڈائریکٹری اور فیوچر میں کبھی اگر آپ نے ایکسچینج اسٹڈی کیا تو اس میں بھی ہیلپ فل ہوگا. تو اسٹارٹ لیتے ہیں. اوکے جی، سب سے پہلے یہ آپ کا ماڈیول اوور ویو ہے. نیم ریزولوشن فار ونڈوز کلائنٹس اینڈ سرورز، دین انسٹالنگ اینڈ مینیجنگ a DNS server and then managing DNS zones. سب سے پہلے نیم ریزولوشن فار کلائنٹس اینڈ سرورز. اچھا ایک منٹ رکیے گا، یہ اس پہ نا ایکچولی ماؤس ڈبل کلک کر رہا ہے، تو لیٹ می چیک کہیں پریویس یونٹ میں کوئی سلائڈ مس تو نہیں ہوئی. ہاں جی، یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد یہ بالکل جی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، صحیح. اوکے جی، فرسٹ لیسن میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کمپیوٹر نیمز کون کون سے ہیں، اس کے بعد ڈی این ایس کا کیا رول ہے، زونز، ریکارڈز، دین انٹرنیٹ ڈی این ایس نیمز ریزولوشن. اس کے بعد لنک لوکل ملٹی کاسٹ نیم ریزولوشن، نیو کانسیپٹ ہے. انفیکٹ نیو تو نہیں ہے، انٹروڈیوس ونڈوز 2008 میں ہوا تھا، لیکن اس وقت کورس میں اس طرح ڈسکس نہیں ہوا جس طرح 12 میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا خاص چیز آپ کو دیتا ہے. اس کے بعد ہاؤ اے کلائنٹ ریزالوز اے نیم اینڈ دین ٹربل شوٹنگ نیم ریزولوشن. سب سے پہلے دیکھ لیں واٹ آر کمپیوٹر نیمز. یہ آپ کے کمپیوٹر نیمز ہیں. دو طرح کے نیم ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے ایف کیو ڈی این ہوتے ہیں جس طرح pc1.concepttrainers.com یا abc.yahoo.com، یہ آپ کے فلی کوالیفائڈ نیمز ہیں. ٹھیک ہے، up to 255 characters long, can contain alphabetic and numeric. ٹھیک ہے، الفابیٹس بھی کنٹین کر سکتے ہیں، نمبرز بھی ہو سکتے ہیں، کریکٹرز، پیریڈز، ہائفنس، یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، ڈیشز بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں. پارٹ آف ایف کیو ڈی این فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم کا پارٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں کہ pc1.hotmail.com، تو اس نیم میں جو pc1 ہے دیٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہوسٹ نیم، جو بالکل لاسٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس نے لکھا پارٹ آف ایف کیو ڈی این. جو فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم ہے اس میں ڈومین نیم بھی ساتھ آ جاتا ہے، جبکہ جو ہوسٹ نیم ہے اس میں صرف ہم ہوسٹ نیم کو کنسیڈر کرتے ہیں، ڈومین نیم کو کنسیڈر نہیں کرتے. نیٹ بایوس نیم جو ہے وہ سنگل کمپیوٹر کے لیے ریپرزینٹ اے سنگل کمپیوٹر اور گروپ آف کمپیوٹرز. ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ نیٹ بایوس آلموسٹ آبسلیٹ ہو گیا ہے، اب جو اپلیکیشنز آپ کے ہاں پروگرام ہو رہی ہیں وہ ساکٹ بیسڈ ہوتی ہیں، ہوسٹ نیمز کو یوز کرتی ہیں. لیکن دیر واز اے ٹائم جب نیٹ بایوس نیمز بہت زیادہ پاپولر تھے، اسپیشلی ونڈوز NT 4.0 تک. تو لیکن بہرحال اب بھی بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کے لیے اس کی سپورٹ ہے، اب بھی آپ کی کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس کی لینتھ 15 کریکٹرز ہے، اور جو 16 کریکٹر ہے وہ آئیڈینٹیفائی سروس، یعنی ٹوٹل جو اس کی لینتھ ہے وہ 16 کریکٹرز کی ہے، اور اس میں سے 15 کریکٹر آپ دیں گے، اور جو لاسٹ کریکٹر ہوگا وہ سروس اسپیسیفک ہوگا، وہ آپ نہیں دیتے
لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. فلیٹ نیم اسپیس ہے, ہائرارکی کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاؤ اٹ لکس لائک. اگر میں یہاں بھی کمانڈ پرمپٹ اوپن کروں اور کمانڈ پرمپٹ پہ میں ایک کمانڈ دوں, ایک منٹ, میں یہاں لکھتا ہوں اب آپ کو کچھ نیمز نظر آئیں گے. یہ دیکھیں, یہ جو نیم آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ نیٹ بایوس نیمز ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں یہ لاسٹ کریکٹر نظر آ رہا ہے 00, یہ 16 کریکٹر ہے, یہ ہیکسا ڈیسیمل فارم میں, اور یہ جو کریکٹرز ہیں یہ آپ نے دیے. اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں تو یہ 15 ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل آپ نے دیکھا نہیں کمپیوٹر خود سے جو نیم جنریٹ کرتا ہے. اگر میں یہاں پہ کمانڈ دوں ہوسٹ نیم, آپ نے دیکھا اس کی فکس لینتھ کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بے شک خود سے جنریٹ کرتا ہے لیکن یہ اس کی خاص لینتھ رکھتا ہے, اس لینتھ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو بیکاز یہ نیٹ بایوس کے ساتھ بھی اس کو کمپلائنٹ رکھتا ہے, یہ 15 سے زیادہ کریکٹرز نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کیونکہ نیٹ بایوس نیم میں 15 جو یوزر ڈیفائنڈ کریکٹرز ہیں وہ میکسیمم 15 ہو سکتے ہیں. یہ جو نیچے نیم آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو اسپیسز ہیں یہ بھی کاؤنٹ ہوں گی, یعنی ان اسپیسز کو چھوڑ کے اس نے یہ 16 کریکٹر ایڈ کیا ہے. یعنی جو نیٹ بایوس نیم ہے وہ یہاں سے شروع ہو کے اور ادھر ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے نیٹ بایوس نیم. آگے آ جائیں. اوکے جی, ڈی این ایس نیمز کیا ہیں؟ یہ وہ نیمز ہیں جو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا واسطہ رہے گا تھرو آؤٹ دا کورس, اور ایون ہم جب پریکٹیکلی کسی انوائرمنٹ کو ٹیون کر رہے ہوتے ہیں. ڈی این ایس نیمز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈی این ایس کین بی یوز ٹو ریزالو ہوسٹ نیمز ٹو آئی پی ایڈریسز. ٹھیک ہے, جو ہوسٹ نیمز ہیں ان کو آئی پی ایڈریسز میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ایک منٹ یار, یہ جو ہم نے ہوسٹ نیم کی ہے نا, ان کی اب ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. اوکے, دین لوکیٹ ڈومین کنٹرولرز اینڈ گلوبل کیٹلاگ سرور. یاد رکھیے گا ڈی این ایس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے انوائرمنٹ میں بہت ساری سروسز جو ہیں ان کی لوکیشن بتاتا ہے. اگر آپ ریکال کریں تو جب آپ ڈومین جوائن کرواتے ہیں کسی کمپیوٹر کو, تو ڈومین جوائن کرتے ہوئے آپ ڈومین نیم دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ایک ڈی سی ہے, اس کا نیم ہے dc1.mcse.com فار ایگزامپل, تو جب آپ ڈومین جوائن کروائیں گے تو آپ dc1.mcse.com نہیں لکھیں گے, آپ صرف لکھیں گے mcse.com. تو بیسیکلی ڈومین جوائن کرنے کے لیے جو چیز اسینشیل ہے دیٹ از ڈومین نیم, ناٹ ڈی سی نیم. تو جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب آپ ڈی سی نیم دے ہی نہیں رہے تو کمپیوٹر کو پھر ڈومین کنٹرولر کا کس طرح پتا لگتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے ڈی این ایس. کمپیوٹر جب آپ یوزر لاگ ان ہو رہا ہوتا ہے تو کمپیوٹر ریکویسٹ بھیجتا ہے ڈی این ایس کے پاس, اور اس سے پوچھتا ہے کہ میری ڈومین ہے mcse.com, مجھے بتاؤ اس کا ڈی سی جو ہے وہ کدھر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رسپانسبلٹی آف ڈی این ایس ہے ٹو لوکیٹ ڈی سیز آئی پی ایڈریس, اس لیے اس نے یہاں لکھا ہے لوکیٹ ڈومین کنٹرولرز اینڈ گلوبل کیٹلاگ سرور. گلوبل کیٹلاگ سرور پری میچور ہو جائے گا کہ ابھی آپ کو بتایا جائے, لیکن اتنی بات یاد رکھیں یہ ڈی سی کا ایڈیشنل بیہیویئر ہے. آپ کا جو ڈومین کنٹرولر ہوتا ہے وہی گلوبل کیٹلاگ سرور ہوتا ہے, اور اس کے بغیر یوزر لاگ ان نہیں ہو سکتا. اس لیول پہ بھی آپ پیپر نمبر 1 پہ ہیں, اس لیول پہ آپ کو یہ دو باتیں لازمی پتا ہونی چاہیے کہ ایک تو جو کمپیوٹر ڈومین کنٹرولر نہیں ہے وہ گلوبل کیٹلاگ نہیں بن سکتا. گلوبل کیٹلاگ آپ صرف اسی کمپیوٹر کو بنا سکتے ہیں جو ڈومین کنٹرولر, اور بائی ڈیفالٹ جو آپ کا فرسٹ ڈومین کنٹرولر ہوتا ہے وہ گلوبل کیٹلاگ ہوتا ہے. اب گلوبل کیٹلاگ کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اس کے بغیر یوزر لاگ ان نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ریزالو آئی پی ایڈریسز ٹو ہوسٹ نیمز. ٹھیک ہے, یہ ڈی این ایس کا پرائمری فنکشن ہے کہ ہوسٹ نیم کو آئی پی میں کنورٹ کرتا ہے اور آئی پی کو ہوسٹ نیم میں کنورٹ کرتا ہے. یعنی اگر فار سم ریزن آپ کے پاس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس ہے اور آپ نام جاننا چاہتے ہیں, اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا, بلکہ میرا آپ سے کوشچن ہے, ذرا ان میوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ جب کمپیوٹر کے پاس آئی پی ایڈریس ہے تو وائی بادر فار نیمز؟ پھر تو آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں نا, کمیونیکیشن کے لیے آئی پی چاہیے, تو پھر آپ ڈی این ایس کو کیوری کر کے اور آئی پی بھیج کے نیم کیوں مانگ رہے ہیں؟ شاباش جی, کوئی آنسر دے سکے اس کا؟ جی سر, کیونکہ ویب سائٹس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہم آئی پیز کے تھرو تو نہیں ایکسیس کرتے نا, ہم نیمز کے تھرو ہی کرتے ہیں. نہیں, لیکن اگر آپ آئی پی ہم نیم کے تھرو کرتے ہیں نا تو وہ نیم تو کنورٹ ہوتا ہے نا آئی پی میں. اگر آپ براؤزر میں نیم لکھیں
आपका जो पैकेट होता है उसमें तो नेम नहीं होता ना, उसमें तो आईपी होता है. तो डीएनएस से पूछा जाएगा कि इसका आईपी बताओ, डीएनएस आईपी बताएगा और वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी. तो वेबसाइट तो आईपी पे एक्सेस हुई ना, नेम पे नहीं हुई. मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं ब्राउजर में आईपी एड्रेस लिख दूं तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी? जी सर, जी हो जाएगी। हो जाएगी ना. तो इसका मतलब है आईपी एड्रेस एक्सेस करने के लिए सफिशिएंट है. तो यहां इसने कहा रिजॉल्व्स आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, यानी डीएनएस को आप आईपी भेज के नेम भी मांग सकते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एक्टिविटी की जरूरत कब पड़ती है कि आप डीएनएस को आईपी भेज के नेम मांग रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है. शाबाश. क्योंकि सर हमारी एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा भी ऐसी मशीन हो सकती हैं, जैसे मेरी अपनी डोमेन का नाम है testing.com और एक इंटरनेट पे भी कोई डोमेन है testing.com, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो मेरी इंटरनल testing.com पे जाए. तो इसीलिए मैं अपने डीएनएस को बताऊंगा कि जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आए testing.com की तो वो मेरे वाले आईपी पे जाए जिसको मैं चाहता हूँ. नहीं, रॉन्ग उस्मान. देखें, एक तो ये कि ये जो आप चीज कह रहे हैं ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दोनों टेस्टिंग आइसोलेटेड हो, यानी एक टेस्टिंग जो आपके एनवायरनमेंट में चल रही है वो इंटरनेट पे विजिबल ना हो. मुझे बताएं, आप इंटरनेट पे क्या दो डोमेन्स testing.com के नाम से हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना. अगर आप इंटरनेट वाली कोई लाइक मैं अपने पीसी पे hotmail.com भी रखूं तो वो नाम मुझे रखने देगा, लेकिन ये जरूरी है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट पे विजिबल ना हो. अगर वो विजिबल है तो फिर तो डुप्लीकेशन है, और ये बिल्कुल अलग बहस है. इस वक्त सवाल सिर्फ ये है कि एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपके पास है, और आईपी एड्रेस वो एंटिटी है जिसकी बेस पे आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं. तो आप नाम क्यों पूछ रहे हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि सम टाइम सिक्योरिटी आपने नेम्स पे इंप्लीमेंट की होती है. लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने फायरवॉल इंप्लीमेंट किया हुआ है और उस फायरवॉल पे मैंने सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि कोई भी यूजर फेसबुक को, यूट्यूब को, लिंक्डइन को, जितनी भी सोशल नेटवर्क्स हैं वो मैंने ब्लॉक किए हैं. ठीक है. अब यूजर डेफिनेटली अगर ब्राउजर में नेम की जगह आईपी पुट कर दे तब भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. ठीक है. तो मैं क्या करता हूं, अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करता हूं कि अगर कोई रिक्वेस्ट डायरेक्टली आईपी पे प्रोसेस हो के आए तो उसे राउट करे किसके पास? डीएनएस के पास, और डीएनएस से पूछे, रिक्वेस्ट को राउट ना करे, डीएनएस को क्यूरी भेजे और डीएनएस से पूछे कि इस आईपी के अगेंस्ट नेम कौन सा है. क्योंकि फायरवॉल की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो नेम्स पे इंप्लीमेंट हुई हुई है और क्लाइंट ने डायरेक्टली आईपी पे रिक्वेस्ट भेज दी है. तो फायरवॉल क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस के पास. डीएनएस जब उसे आईपी बताएगा तो अब फायरवॉल, डीएनएस जब उसे नेम बताएगा तो अब फायरवॉल चेक कर सकता है कि क्या वो नेम उसके डेटाबेस में अलाउड लिस्ट में एडेड है या डिनाइड में एडेड है. तो याद रखिएगा, जो रिवर्स क्यूरी है उसकी जरूरत आपको दो केसेस में होती है. पहला केस ये है जो मैंने आपको बताया, इसको जनरली आप कह सकते हैं फॉर सिक्योरिटी, और दूसरे आपकी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमांड लाइन यूटिलिटी है एनएस लुकअप, जिससे आप डीएनएस को डायग्नोस करते हैं. एनएस लुकअप भी रिवर्स जो एंट्रीज हैं वो रिक्वायर करती है. अगर आप वो ना दें तो एनएस लुकअप एक एरर जनरेट करती रहती है. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कभी इंटरव्यू में कि रिवर्स लुकअप जोन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो दो अपेरेंट आपके आंसर होने चाहिए. ठीक है. एक सिक्योरिटी और दूसरा एनएस लुकअप. ओके जी. लोकेट मेल सर्वर्स ड्यूरिंग ईमेल डिलीवरी. जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल में आप अगेन मेल सर्वर का आईपी एड्रेस तो नहीं देते ना. आप अगर मुझे मेल कर रहे हैं तो आप ईमेल में लिखेंगे ताहिर एट जो भी मेरा डोमेन है, फॉर एग्जांपल tahir2k22@hotmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है. इस पे आप मेल करेंगे. अब इस ईमेल एड्रेस में कहीं भी मेल सर्वर का आईपी नहीं आ रहा, जबकि कम्युनिकेशन तो आईपी पे होती है. तो अब होगा क्या, जो आपका मेल सर्वर होगा, आपका मेल सर्वर, फॉर एग्जांपल आपने मुझे मेल की है याहू से, याहू मेल से आप मेल कर रहे हैं और मेरे मेल एड्रेस पे आएगी हॉटमेल पे. तो याहू का जो मेल सर्वर है वो डीएनएस को क्यूरी करेगा. क्या क्यूरी करेगा कि ये hotmail.com के मेल सर्वर का आईपी बता दो, और जब उसे आईपी मिल जाएगा देन वो जो आपकी ईमेल है उसे डिलीवर कर देगा उस मेल सर्वर पे. ठीक है. बेसिकली समझने वाली बात यह कि डीएनएस के बगैर ईमेल डिलीवरी भी नहीं हो सकती. ये फिर डबल क्लिक हो गया. यस जी. डीएनएस जोन्स एंड रिकॉर्ड्स देख लें. डीएनएस जोन क्या होता है? डीएनएस का जो डेटाबेस है उसे जोन कहते हैं. जब आप डीएनएस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहला काम जो आप डीएनएस सर्वर पे करेंगे वो क्रिएशन ऑफ जोन्स है. आप डीएनएस पे जोन बनाएंगे. ठीक है.
A DNS zone is a specific portion of DNS namespace that contains DNS records. देखें ये जो इसने लिखा ना specific portion, आप इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट पे तो मिलियंस ऑफ, बल्कि बिलियंस, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और जाहिर है इंटरनेट एक्सेस जो होती है, जो आप वेब कंटेंट को व्यू कर रहे होते हैं, वो विदाउट डीएनएस तो नहीं हो सकता ना, डीएनएस ही आईपी एड्रेस को लोकेट करके देता है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कंपनी जब अपना वेब सर्वर स्टेब्लिश करती है तो उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आउटसोर्स कर दे, पूरा वेब सर्वर उठा के किसी सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पे रख दे, उसी की जिम्मेदारी हो, लाइक गोडैडी है और बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। और या फिर एक तरीका ये होता है कि वो इंस्टेड के से किसी एक्सटर्नल वेंडर के पास रख के वो कहते हैं नहीं हम अपने ही वेब सर्वर पे से प्लेस करते हैं। तो अगर वो अपना वेब सर्वर स्टेब्लिश करते हैं तो फिर अब डीएनएस का भी देखना पड़ेगा कि डीएनएस भी वो अपना लगाना चाहते हैं या आईएसपी का यूज कर लेते हैं। तो अगर वो चाहें तो वो डीएनएस अपना लगा सकते हैं, और उस डीएनएस पे अब वो जो उनका वेबसाइट का नाम होगा उसी नेम से कॉरस्पॉन्ड करता हुआ जोन क्रिएट करेंगे। लाइक उनकी वेबसाइट का नाम अगर था www.ct.com, तो वो जो जोन बनाएंगे उसका नाम भी क्या होगा, ct.com, ठीक है। जोन में दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है इसमें नेम टू आईपी मैपिंग्स होती हैं, यानी इनमें वो एंट्रीज होती हैं जिनकी बेस पे आप नेम भेज के आईपी एड्रेस ले सकते हैं। और जो रिवर्स लुकअप जोन है इसमें आईपी टू नेम मैपिंग्स होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिनकी बेस पे आप रिवर्स एंट्रीज से हेल्प ले सकते हैं, यानी आईपी भेज के और कंप्यूटर डीएनएस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस आईपी के अगेंस्ट जो नेम है वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। और डीएनएस में जो जोन के अंदर आप एंट्रीज क्रिएट करते हैं उन्हें हम रिसोर्स रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसमें आप नेम और आईपीज देते हैं। ये नीचे कुछ टाइप्स लिखी हुई है। रिसोर्स रिकॉर्ड्स इन फॉरवर्ड लुकअप जोन्स इंक्लूड एएमएक्स, एसआरवी, एनएस, एसओए, सीनेम। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात इस पे बता देता हूं, लेकिन डिटेल डिस्कशन आगे आएगी। ए रिकॉर्ड सबसे पहले याद रखें, डीएनएस में बेसिक लेवल पे दो रिकॉर्ड्स हैं, ए और पीटीआर, ठीक है। डीएनएस में जो आईपी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एक ए है और एक पीटीआर है। ए रिकॉर्ड में नेम टू आईपी मैपिंग्स हैं और पीटीआर रिकॉर्ड में आईपी टू नेम मैपिंग्स हैं, यानी पीटीआर रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड का एग्जैक्टली उलट है, ठीक है। अगर आप डीएनएस को नेम भेज के आईपी मांगे तो डीएनएस ए रिकॉर्ड को रीड करता है, और अगर आप डीएनएस पे आईपी एड्रेस सेंड करके और क्यूरी करें फॉर द नेम तो फिर डीएनएस कौन सा रिकॉर्ड कंसल्ट करेगा, पीटीआर। मैं आपको ये दिखा भी देता हूं और उसके साथ साथ फिर हम दूसरे रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। मैं अगर डीएनएस ओपन करूं, यहां से ओपन कर लें, ये डीएनएस ओपन हो रहा है, तो ये आपके सामने फॉरवर्ड लुकअप जोन है और दिस वन इज रिवर्स लुकअप जोन। मैं फॉरवर्ड को एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास mcsc2.com के नाम से एक जोन बना हुआ आ रहा है, और ये आप देखें ए रिकॉर्ड है ये सारे, ये नीचे टाइप आपको नजर आ रही है ए, ठीक है। ये नाम है और ये आईपी एड्रेसेस हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ए रिकॉर्ड है वो नेम टू आईपी मैपिंग्स के लिए होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ओपन करूं रिवर्स लुकअप जोन, तो इस वक्त रिवर्स लुकअप जोन नहीं बना हुआ, मैं क्रिएट कर देता हूं। मैं रिवर्स जोन बना देता हूं। इसमें आपको बताना पड़ती है अपनी नेट आईडी, और कोई और अगर क्वेश्चन ध्यान में आए तो थोड़ा सा रुकना है, टाइमली इसका भी जवाब दे दिया जाएगा। ये आपके पास रिवर्स जोन है। अब देखें इसमें इस वक्त आपको पीटीआर रिकॉर्ड कोई नहीं नजर आ रहा, दो रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, एसओए और एनएस। एसओए और एनएस याद रखिएगा, जैसे ही आप डीएनएस में कोई जोन बनाते हैं तो जोन में बाय बर्थ ये दो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, यानी जोन जैसे ही बनता है ये दो रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, ये आपने नहीं बनाए। अच्छा, मैं अब यहाँ पे पीटीआर के लिए मैं ए रिकॉर्ड बनाता हूँ, एक ए रिकॉर्ड बनाता हूँ और उसमें मैं देता हूँ नेम PC1 फॉर एग्जाम्पल, और मैं आईपी एड्रेस देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 192.168.1.200। ये मैंने एक एंट्री क्रिएट की। अब आप देखें इन्हीं दो बातों की बेस पे पीटीआर रिकॉर्ड भी तो बन सकता है, यानी ए रिकॉर्ड में तो नेम आ गया पहले इधर और आईपी एड्रेस जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दूं तो ये इसका पीटीआर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देगा। ऐड करवाएं, ओके करें, देखें ये तो है इसका ए रिकॉर्ड, इनपुट इसका नेम है,
आउटपुट आईपी है। अगर मैं रिवर्स जोन में जाऊं, रिफ्रेश करें, तो ये पीटीआर रिकॉर्ड आ रहा है, इनपुट आईपी है और आउटपुट नेम है। ठीक है, तो ये ए और पीटीआर रिकॉर्ड बेसिक लेवल पे ये यही दो रिकॉर्ड्स होते हैं, और जो रिकॉर्ड्स वहां डिस्प्ले हुए हैं वो भी क्रिएट हुए होते हैं, लाइक ये एनएस और एसओए आपको नजर आ रहा है, उसके अलावा एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन सब की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। ए रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया। एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर के लिए होता है। एमएक्स रिकॉर्ड किस लिए होता है? मेल सर्वर के लिए। अगर मेल सर्वर नहीं है तो एमएक्स रिकॉर्ड नहीं होगा। एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं इस लेवल पे, ये याद रखें, डोमेन कंट्रोलर्स के लिए, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स के लिए। ठीक है, जनरली इन्हें हम कहते हैं सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड। ये सर्विस लोकेशन रिकॉर्ड है, ये सर्विस को लोकेट करने के लिए। तो अब डोमेन कंट्रोलर भी एक सर्विस है और ग्लोबल कैटलॉग भी एक सर्विस है। उसके बाद है एनएस। एनएस और एसओए, ये दोनों रिकॉर्ड जब आप डीएनएस स्टैब्लिश करते हैं और डीएनएस में जैसे ही आप जोन क्रिएट करते हैं, भी आपने देखा मैंने जैसे ही जोन बनाए ये दोनों रिकॉर्ड्स उसमें क्रिएट हो गए थे। एनएस है नेम सर्वर रिकॉर्ड। इसके अंदर डीएनएस का अपना आईपी होता है जो बताता है कि इस सर्वर का रिस्पॉन्सिबल डीएनएस सर्वर कौन है, इस जोन का। ठीक है, और एसओए है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। एसओए रिकॉर्ड इस चीज को प्रूफ करता है कि ये डीएनएस सर्वर रिस्पॉन्सिबल है और अथॉरिटेटिव है। टेक्निकली याद रखिएगा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डीएनएस से क्लाइंट पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं 2012 के और इवन 2000 से बाद के, यानी विंडोज 2000, 2003, 8 एंड इवन 12 क्लाइंट्स, इनमें अगर आप नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाएं, चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, और यहां पे आप प्रॉपर्टीज देखें तो एक चेक बॉक्स होता है टीसीपी/आईपी की प्रॉपर्टीज में जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। ये डीएनएस के पेज में ये आपके सामने, रजिस्टर दिस कनेक्शन एड्रेस इन डीएनएस। इसका मतलब है आप क्लाइंट को ट्यून कर रहे हैं कि अपना आईपी एड्रेस और अपना नाम वो डीएनएस में जाकर रजिस्टर करवाओ। अगर आप गौर से देखें तो यहां जो एंट्रीज नजर आ रही हैं वो सारी मैंने मैन्युअली नहीं क्रिएट की, कुछ एंट्रीज ऐसी भी हैं जो ऑटोमेटिकली बन गई हैं। देखें ना, ये सामने मेंशन है 1, 2, 3, इन 3 के सामने लिखा हुआ है स्टैटिक, यानी ये मैंने क्रिएट की है। ठीक है, ये देखें PC1, रिफ्रेश करें जरा, इसको भी स्टैटिक हो जाना चाहिए। देखें PC1 भी क्या है, स्टैटिक, ये मैंने अभी आपके सामने बनाई है। लेकिन ये विंडोज 8 की जो एंट्री है, मेरा जो क्लाइंट है, ये मैंने नहीं क्रिएट की है, तो ऑटोमेटिकली बन गई है 192.168.1.20। इसी तरह ये एंट्री भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। तो ये एंट्रीज किस तरह आई हैं? ये ऑटोमेटिकली आ गई ना, इसका मतलब इन क्लाइंट्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। अब हम समझ रहे थे एसओए रिकॉर्ड। याद रखिएगा, क्लाइंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डीएनएस से पहले पूछता है कि क्या तुम अथॉरिटेटिव हो, क्या तुम इस जोन की अथॉरिटी है तुम्हारे पास। और जब ये अथॉरिटी की डिमांड क्लाइंट करता है तो डीएनएस कौन सा रिकॉर्ड रिटर्न करता है? एसओए। एसओए रिकॉर्ड सर्व्स एज अ प्रूफ दैट दिस डीएनएस सर्वर होल्ड्स अथॉरिटी। ठीक है, इसके पास उस पर्टिकुलर जोन की अथॉरिटी है, ये उसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ले सकता है। सी नेम होता है नेम टू नेम मैपिंग्स। समटाइम ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर नेम पे रिक्वेस्ट आ रही है और उससे किसी दूसरे नेम पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। लाइकवाइज अगर मेरे पास यहाँ पे इस वक्त आपको मैं दिखाता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं पिंक और ये नाम है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि कोई अगर लिखे पिंग्स dc.mcsc2.com तो वो रीडायरेक्ट हो जाए इस पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे राइट क्लिक करूंगा, सी नेम में मैं देता हूं डीसी। ठीक है जी, फुली क्वालिफाइड क्या हो गया, dc.mcsc2.com, और मैं ब्राउज करके और वो जो कॉम्प्लेक्स सा नाम है वो पूरा दे देता हूं, यस। ठीक है, अब आप देखें मैंने दोनों नेम दिए हैं, ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सी नेम जो है वो नेम को नेम में रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब आप ये नेम दें तो डीएनएस इसको कन्वर्ट कर देगा इस नाम में, और जब इस नाम में कन्वर्ट करेगा तो फिर ये वाला रिकॉर्ड हिट हो जाएगा, ये रिकॉर्ड। ठीक है, ओके करें।
آپ یہاں سے لکھیں ping dc.mcsc2.com اور رپلائی اس کمپیوٹر سے آ جائے گا. یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے, آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا آ رہا ہے, پنگنگ دس ون. اب یہ نیم وہی آ رہا ہے جو سی نیم کے ساتھ ہم نے دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے. تو بیسیکلی سی نیم جو ریکارڈ ہوتا ہے ایلیس ہے, بیسیکلی یہ ایلیس دینے کے لیے ہوتا ہے. میں نے ایک ایلیس ڈکلیئر کر دیا ہے اس نیم کے لیے, ایک میں نے ایڈیشنل ایلیس ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے dc.mcsc.com, mcsc2.com سوری. تو یہ بیسیکلی ریکارڈز ہیں, ان سب ریکارڈز کی اپنی اپنی سگنیفیکینس ہے. پی ٹی آر میں نے آپ کو بتا دیا ریورس کے لیے. اوکے, یہ اب آپ کو تھوڑا سا ہائی لیول اوور ویو دے رہا ہے ڈی این ایس کا. یہ میں نے خود ایڈ کی ہے, یہ میں نے اس لیے بریکٹ میں لکھ دی ہے کیونکہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے نا یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تاکہ تو اس میں یاد رکھیے گا بیسیکلی انٹرنیٹ پہ یہ نیم اسپیس ہے, اس طرح سے یوز ہو رہی ہوتی ہے. انٹرنیٹ پہ اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کریں تو انٹرنیٹ پہ کوئی ایک پرٹیکولر ایریا تو نہیں ہے نا, یعنی انٹرنیٹ پہ تو بلینز آف ویب سائٹس ہیں, ٹریلینز آف ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے بڑے اسٹرکچر کو کبھی بھی سینٹرلائز نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ایک سرور ہے جو امریکہ میں پڑا ہوا ہے یا لائک کسی اور کنٹری میں پڑا ہوا ہے اور اس میں تمام ویب سائٹس کے آئی پیز ہیں. نہیں, ایسا کوئی سرور ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یاد رکھیے گا ڈی این ایس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. ہر پورشن کی رسپانسبلٹی اسی پورشن کے ایڈمنسٹریٹرز کے پاس ہوگی. دیر از نو سینٹرلائز ڈی این ایس سرور ایگزسٹ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کوئی سینٹرلائز ڈی این ایس سرور اویلیبل نہیں ہے تھرو آؤٹ دا انٹرنیٹ. تو بیسیکلی ہوگا کیا, یہ آپ کے پاس ایک پورشن ہے, یہ دوسرا پورشن ہے, یہ ڈفرنٹ ایریاز ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹاپ میں آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا, یہ ریپرزینٹ کرتا ہے روٹ کو. روٹ ریسپانسبل ہے ان ڈومینس کا, یہ کام, edu, org, ڈاٹ نیٹ ہو گئی, ڈاٹ بز ہو گئی, ڈاٹ فورم ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح کنٹری کوڈز ہیں, ڈاٹ سی اے, ڈاٹ سی او, ڈاٹ پی کے. یہ آپ کی ٹاپ لیول ڈومینز ہیں, یعنی ہم کیا کہتے ہیں ٹاپ لیول ڈومینز. اس کے بعد اس کے انڈرنیتھ جو ڈومینز آئیں گی یہ ہیں سیکنڈ لیول ڈومین. ٹھیک ہے, یہ مائکروسافٹ یہ کیا کہلائے گی, سیکنڈ لیول ڈومین. اب مائکروسافٹ کا پورا نام کیا ہوگا, مائکروسافٹ ڈاٹ کام. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کام کے بعد بھی ایک ڈاٹ ہے جو آپ نہیں لکھتے لیکن کنفیگریشن فائلز میں ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اپنا ڈی این ایس دکھاؤں تو اس کی پراپرٹیز میں اگر آپ غور کریں, کسی یہ ریکارڈ کو اوپن کر لیں تو یہ جو نیم آپ دیتے ہیں اس کے بعد بھی ایک نیم ہوتا ہے, اور اگر میں کوئی نیو ریکارڈ کریٹ کروں تو وہ نیم ڈسپلے بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں PC25. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھیں یہ ایک ڈاٹ یہ بھی آ رہا ہے, کام کے بعد بھی ایک ڈاٹ آ رہا ہے. اس ڈاٹ کو فل اسٹاپ نہیں سمجھیے گا, یہ ڈاٹ ریپرزینٹ کر رہا ہے روٹ لیول ڈومین کو, کام ریپرزینٹ کر رہا ہے ٹاپ لیول ڈومین کو, MCSE2 ہے سیکنڈ لیول ڈومین, اور PC25 ہے ہوسٹ نیم. بیسیکلی جو چیلنج ہے جو آپ اگر سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ اس سلائیڈ کو پڑھنے کا فائدہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو کہا کہ جو انٹرنیٹ پہ ڈی این ایس کا اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اگر ڈی این ایس کا اسٹرکچر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو اٹ مینس کہ دیر از نو سنگل ڈی این ایس سرور دیٹ از کیپیبل آف ریزالونگ آل ڈومین نیمز. ٹھیک ہے, اسی بات سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ پھر تو انٹرنیٹ پہ جو ڈی این ایس سرورز ہیں ان کے پاس ڈفرنٹ انفارمیشن ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مائکروسافٹ کا ڈی این ایس ہوگا اس کے پاس سسکو کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی, جو سسکو کا ڈی این ایس ہوگا اس کے پاس ہاٹ میل کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی, جو ہاٹ میل کا ڈی این ایس ہوگا اس کے پاس یاہو کی کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی. ہر ڈی این ایس کے پاس اپنے زون کی یونیک انفارمیشن ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جس طرح ہم نے کہا انٹرنیٹ پہ ٹریلینز آف ڈومینز ہیں تو پھر ملینز آف ڈی این ایس سرورز بھی ہوں گے. اور چیلنجنگ ٹاسک یہ ہے کہ وہ ڈی این ایس سرور آپس میں ایک دوسرے کو لوکیٹ کس طرح کرتے ہیں, کیونکہ ڈی این ایس کے ڈیٹا بیس میں کوئی ایسی انٹری نہیں ہوتی جو دنیا کے تمام ڈی این ایس سرور کے آئی پیز کنوے کرے. تو ہوتا یہ کہ اس آئی پی ایڈریس کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے, اس ڈی این ایس سرور کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ لوکیٹ کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو اس نے کچھ کمپوننٹس بتائے ہیں, زون کی ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں, یہ ایک زون تھا microsoft.com, اس کے انڈرنیتھ ایک اور پورشن ایڈ کیا گیا چائلڈ زون. تو اس میں
एग्जाम्पल नाम जोन का रखा गया तो पूरा नाम क्या आ रहा है, example.microsoft.com, ठीक है। अब आप ये स्लाइड देखें, ये इसमें इसने यही डीएनएस हायरार्की ये भी मैंने ऐड की है। ये आपके पास टॉप लेवल डोमेन है, ये रूट लेवल डोमेन है, ये सेकंड लेवल डोमेन है और ये आपके होस्ट नेम, ठीक है। और ये मल्टीपल लेयर्स भी ऐड हो सकती हैं, जैसे इस नेम को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये नेम किस तरह होगा, ये नेम होगा www.cs.colorado.edu, ठीक है, ये पूरा इसका नाम होगा, ठीक है। ये है www.yahoo.com, तो ये नाम आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तब आपको ये हायरार्की नजर आती है, समझ आती है। आगे आ जाए। ओके, हाउ इंटरनेट डीएनएस नेम्स आर रिजॉल्व। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि डीएनएस को पहले लोकेट करना पड़ता है कि दूसरा डीएनएस कौन सा है, यानी बड़ी सिंपल सी बात है। आप फॉर एग्जांपल आपका आईएसपी है, आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपका आईएसपी जो है उसी ने डीएनएस यूज किया हुआ होगा, वही डीएनएस आपको हर वेबसाइट का आईपी बता रहा है। लेकिन सवाल यह खुद बता रहा है या पूछ के बता रहा है, तो इसका आंसर ये है कि खुद नहीं बता रहा, पूछ कर बता रहा है। आपने ब्राउजर खोला और उस पर लिखा www.yahoo.com, रिक्वेस्ट गई आईएसपी के डीएनएस के पास। अब आईएसपी का डीएनएस सबसे पहले तो अपना कैशे चेक करेगा। हमारी असम्पशन है कि कैशे में एंट्री नहीं है। जब कैशे में एंट्री नहीं है तो फिर वो डेटाबेस तो कंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटाबेस कंसल्ट वो उस वक्त करता जब वो उस जोन का रिस्पॉन्सिबल होता। तो वो क्योंकि उस जोन का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस डीएनएस को ढूंढेगा जो उस जोन का रिस्पॉन्सिबल है, और उसके लिए सबसे पहले उसे कहां जाना पड़ेगा, रूट पे। रूट पे वो खुद से जाएगा। खुद से क्यों जा सकता है, क्योंकि दुनिया के हर डीएनएस सर्वर पे रूट हिंट्स मौजूद होते हैं, प्रोवाइडेड कि उसे रूट हिंट्स की जरूरत हो। ये देखें जी, रूट हिंट्स, ये आईपीज हैं उन रूट सर्वर्स के जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल डोमेन के। जब वो इन रूट सर्वर्स पे जाएगा तो वो रूट सर्वर उसे कहां भेज देंगे, टॉप लेवल डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दे देंगे। तो यही प्रोसेस ने यहां एक्सप्लेन किया है कि ये एक क्लाइंट था जिसने एक्सेस करना था microsoft.com को, इसने अपने लोकल डीएनएस को क्यूरी किया। अब ये जो डीएनएस था इसके पास उस microsoft.com का आईपी नहीं था, और ना ही ये डीएनएस microsoft.com का अथॉरिटेटिव था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो अब ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, रूट के पास। ये देखें, रूट डीएनएस सर्वर्स। रूट क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल का, इसलिए रूट इसे टॉप लेवल के डीएनएस का आईपी देगा, ये फिर टॉप लेवल डीएनएस पे चला जाएगा। टॉप लेवल डीएनएस क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है सेकंड लेवल का, इसलिए वो सेकंड लेवल का आईपी देगा, डीएनएस फिर सेकंड लेवल पे चला जाएगा। और अब ये उस जगह पहुंच गया। ये सारा काम जो है ना, इस एरो की टेल क्लाइंट की तरफ नहीं है, ये जो तीनों एरोज हैं इनकी टेल डीएनएस सर्वर की तरफ है। ये भी डीएनएस सर्वर गया है, सेकंड स्टेप में ये भी डीएनएस सर्वर है, थर्ड में ये भी डीएनएस है। पता नहीं बनाने वाला, स्लाइड बनाने वाला खुद डाउट में था, उसने इसलिए ऊपर वाले एरोज को बीच में कर दिया कि बंदा फंसा ही रहे। ये जो टेल है ये डीएनएस सर्वर की तरफ है। ये तीनों स्टेप्स डीएस ने खुद से परफॉर्म किए, और इसका प्रूफ है आगे जो आप देखेंगे। ये अब डीएनएस के पास रिप्लाई आया है, और वो रिप्लाई उस डीएनएस ने किसे दे दिया, क्लाइंट को, ठीक है। तो ये एरो भी यहां तक थोड़ा आगे कर देता, ये तो लग रहा है अपने पास ही रख रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होगा कि क्लाइंट की क्यूरी आई डीएनएस के पास, डीएनएस रूट पे गया, रूट ने उसे कॉम के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दिया, वो फिर कॉम पे गया, कॉम ने उसे सेकंड लेवल डीएनएस सर्वर का आईपी दिया, वो फिर। अब इसमें एक एक स्टेप, एक और बात याद रखें, बेसिकली ये काम जो है ये इस तरह से हुआ है कि ये पहले वर्क स्टेशन इस पे गया, ये रूट के पास जाता है, रूट का रिप्लाई इसके पास आता है, ठीक है। पहले रूट का रिप्लाई आता है और उसके बाद फिर ये यानी इट्स नॉट लाइक कि रूट पे गया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो खुद ही फिर कॉम पे चला गया, ऐसा नहीं है। रूट से इसको रिटर्न हुआ है आईपी एड्रेस ऑफ कॉम, आईपी एड्रेस ऑफ कॉम डीएनएस सर्वर। देन ये कॉम पे गया, कॉम ने रिटर्न किया इसे आईपी एड्रेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, देन ये गया माइक्रोसॉफ्ट पे। अगर ये खुद से जा सकता था, यानी अगर ये यहां गया है और फिर इसी ने बस ये देखे ना, ये इन दोनों स्टेप्स के दरमियान कुछ नहीं दिखाया इसने, ठीक है, ये इसे दिखाना चाहिए था। एनी हाउ, इसीलिए मैंने स्लाइड्स कुछ एक्स्ट्रा ऐड की थी ताकि बात क्लियर हो सके आपको। ये जनाब आईपी एड्रेस फाइनली
वर्क स्टेशन को रिटर्न हो गया। इसे आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, डीएनएस जो है उस पर अपनी ग्रिप रखनी है। ओके, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ विंडोज सर्वर 2008। अब ये 12 में भी मौजूद है और कुछ एनवायरनमेंट में ये बड़ा हेल्पफुल है, वेयर एज कुछ एनवायरनमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बन जाए। लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन, इसका मतलब है इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता होगा, बिल्कुल जी यूज होता है। होता यह है कि क्लाइंट डीएनएस के पास गया, डीएनएस ने उसे आईपी एड्रेस बताया। पहली बात तो ये याद रखें कि LLMNR में जो नेम डिस्कस हो रहे हैं वो फ्लैट है, हायरार्किकल नेम डिस्कस नहीं हो रहे। जो हायरार्किकल नेम्स हैं उनका ताल्लुक प्योरली डीएनएस के साथ है, ये हम फ्लैट नेम्स की बात कर रहे हैं। क्लाइंट ने एक्सेस किया PC5 को, रिक्वेस्ट गई डीएनएस के पास, डीएनएस ने अपना डेटाबेस चेक किया और बताया कि मेरे पास ये रिकॉर्ड नहीं है। अब क्लाइंट पहले क्या करेगा, LLMNR यूज करेगा और LLMNR बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहें तो आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिसेबल कर सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है तमाम कंप्यूटर्स में। ठीक है, मैं बल्कि इसकी डेमोन्स्ट्रेशन छोटी सी आपको अगर दे सकूं, क्योंकि इसने तो रिक्वायर नहीं किया, तो होने दें से लोड, पहले ही पढ़ लें फिर मैं आपको दिखाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। LLMNR इज एन एडिशनल मेथड फॉर नेम रेजोल्यूशन दैट डज नॉट यूज डीएनएस और विंस। ठीक है, ना ये डीएनएस को यूज कर रहा है ना विंस को यूज कर रहा है, मल्टीकास्ट कर रहा है। LLMNR इज डिजाइंड फॉर IPv6। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि V4 के लिए यूज नहीं होगा, V6 और V4 दोनों के लिए है। Works only on Windows Server, Windows Vista, Windows Server 2008 and all newer Windows operating system. बेसिकली इंट्रोड्यूस 2008 में हुआ था ना और विस्टा में, तो उनमें इसकी सपोर्ट है और बाद वाले आने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज 7, विंडोज 8, इनमें भी सपोर्ट है। नेटवर्क डिस्कवरी मस्ट बी इनेबल्ड, नेटवर्क डिस्कवरी ऑन होनी चाहिए इस फीचर के लिए। कैन बी कंट्रोल्ड वाया ग्रुप पॉलिसी, यानी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप इसे इसकी डिसेबलमेंट या इनेबलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क डिस्कवरी क्या होती है, नेटवर्क डिस्कवरी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ओपन करें नेटवर्क प्रॉपर्टीज VMware में, हम सर्वर पे चले जाते हैं, सर्वर पे ही देख लेते हैं। ये राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है, और इसमें जनाब आप एडवांस सेटिंग्स ओपन करें, तो ये अब देखें यहाँ पे प्रोफाइल बने हुए हैं। एक प्रोफाइल है प्राइवेट के लिए, एक गेस्ट और पब्लिक के लिए, एक डोमेन करंट के लिए, एक ऑल नेटवर्क्स के लिए। पहले आप देख लें प्राइवेट, एक्सपेंड करें, पहली ऑप्शन देखें नेटवर्क डिस्कवरी, टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए डिसेबल्ड है। इसी तरह गेस्ट और पब्लिक के लिए भी डिसेबल्ड है। ठीक है, डोमेन के लिए इनेबल हो सकती है, ये देखें इसमें भी डिसेबल्ड है। ओके, डिसेबल्ड है जी, ठीक है। ठीक है, क्लाइंट साइड पे जरूर ऑन होगी, तो आप बहरहाल यहां से ऑन कर सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो फिर LLMNR किक इन नहीं होगा। ठीक है, हम विंडोज 8 पे आते हैं, उस पर भी इसे वेरीफाई करते हैं। जी, मैं ओपन करता हूं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, एडवांस शेयरिंग में जाता हूं। यहां पे आप देखें टर्न ऑफ, गेस्ट पब्लिक पे टर्न ऑफ है और प्राइवेट पे टर्न ऑन है। ठीक है, प्राइवेट पे ये चल रहा है। तो अब ये चल रहा है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिख दूं पिंग PC65, तो LLMNR किक इन हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये एंट्री जो ये मैंने नेम दिया ये डीएनएस के पास तो नहीं है। जब डीएनएस फेल होगा तो फिर ये LLMNR के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, याद रखिएगा LLMNR जो है वो टू 224.0.0.252 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेमोरी मेरी साथ दे रही है। ये मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसके थ्रू ये रिजॉल्व करता है। इसको वेरीफाई करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप सर्वर साइड पे काम करें, आपके पास नेटवर्क मॉनिटर चल रहा है, क्योंकि वैसे तो नजर नहीं आएगा ना, तो बैकग्राउंड में हुआ होगा। आप ऑन कर लें नेटवर्क मॉनिटर को और उस पर कैप्चर स्टार्ट कर लें। ये नेटवर्क मॉनिटर मैं चला देता हूँ और इस पर मैं कैप्चर को स्टार्ट कर देता हूँ। न्यू कैप्चर कर लें
اور نیو کیپچر کو ہم اسٹارٹ کر دیں گے. جو ہم نے انفارمیشن چیک کرنی ہے وہ یہ یاد رکھیے گا, آپ کو میں نے آئی پی بھی بتا دی ہے 224.0.0.252 اور UDP/5355 یہ اس کی پورٹ ہے LLMNR کی. ہم اس انفارمیشن کو ڈھونڈیں گے. ہم یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, کیپچر کو ہم کرواتے ہیں اسٹارٹ, کلائنٹ پہ جا کے ہم کرتے ہیں پنگ. یہ جناب پہلے گیا DNS کے پاس, اس کے بعد گیا LLMNR کے پاس. یہاں پہ ہم کیپچر کو سٹاپ کر دیں گے, ادھر ویٹ کریں, دیکھیں کوئی مطلب کی چیز آئی. یہ جناب سٹاپ کر دیں, بس جو چیز ہمیں چاہیے تھی وہ مل گئی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے LLMNR, ڈبل کلک کریں اس سے, یہ آپ کے سامنے انفارمیشن آ گئی. ٹھیک ہے, ایک تو ایڈریس دیکھیں, یہ دس ون 224.0.0.252 آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ 224.0.0.2. ٹھیک ہے, تو اس ایڈریس پہ اس نے یہ ملٹی کاسٹ بھیجی ہے. ایکسپینڈ کریں, پورٹ انفارمیشن دیکھیں, UDP پورٹ ہے اور یہ پورٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ڈیسٹینیشن پورٹ کیا ہے 5355. ٹھیک ہے, تو جو بھی کمپیوٹر جس کا نیم میچ کرتا ہوگا وہ رپلائی کر دے گا. اور یاد رکھیے گا V4 اور V6 دونوں کے لیے یہ آپ کے سامنے یہ V4 ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو آپریٹ جہاں کیا وہاں پہ چل ہی V4 رہا ہے. میرا خیال ہے دس انفارمیشن از انف, آپ کو ورکنگ پتہ لگ گئی ہوگی. انوائرمنٹ میں کمپیوٹر ایک ملٹی کاسٹ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ویئر از PC65, جو بھی پی سی آپ ایکسس کر رہے ہیں, جہاں بھی PC65 ہوگا, اگر وہ LLMNR انیبلڈ پی سی ہے تو وہ رپلائی کر دے گا. اور وہ انیبلڈ کب ہوگا, جب ایک تو اس میں آپریٹنگ سسٹم سپورٹڈ اور دین آپ نے نیٹ ورک ڈسکوری یا گروپ پالیسی کے تھرو سے آن کیا. وہ گروپ پالیسی کے تھرو تو ہم یعنی بائی ڈیفالٹ آن ہے, اگر آپ آف کر دیں گروپ پالیسی کے تھرو دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. جی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے؟ سر ملٹی کاسٹ ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں, ملٹی کاسٹ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں 3 طرح کی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے یونیکاسٹ, ایک ہوتی ہے براڈ کاسٹ اور ایک ہوتی ہے ملٹی کاسٹ. یونیکاسٹ پیکٹ وہ ہوتا ہے جو کسی ایک نوٹ کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ریسیور اگر ہے تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز یونیکاسٹ. ٹھیک ہے, ایک ہی ریسیور ہے جس کا, ایسا پیکٹ جس میں جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے وہ کسی ایک اینٹی کا لکھا ہو. جو براڈ کاسٹ ہوتی ہے وہ تمام نوٹس کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا پیکٹ جو تمام نوٹس کے لیے جائے, تمام نوٹس کو ریسیو ہو, اسے براڈ کاسٹ کہتے ہیں. اس کی بہت ساری ایگزامپل ہیں. فار ایگزامپل ARP ریکویسٹ جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے ملٹی کاسٹ. ملٹی کاسٹ ہوتی ہے گروپ آف نوٹس کے لیے. ملٹی کاسٹ نہ تو سب کو جاتا ہے میسج, نہ ایک کو جاتا ہے, بلکہ گروپ آف نوٹس کو ریسیو ہوتا ہے. اور کس گروپ کو ریسیو ہوتا ہے؟ جو اس پرٹیکولر ملٹی کاسٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے LLMNR کی جو ملٹی کاسٹ ہے, اس کو وہی نوڈز انڈرسٹینڈ کر سکیں گی جو LLMNR ڈیپینڈنٹ ہیں, LLMNR انیبلڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو یا جو آپ نے چیز پوچھی ہے وہ پریسائزلی یہ ہے کہ جو میسج گروپ آف نوٹس کو سینڈ کیا جائے دیٹ از بیسیکلی ملٹی کاسٹ. یعنی ملٹی کاسٹ ہے یہ, نہ یہ براڈ کاسٹ ہے نہ یہ یونی کاسٹ ہے. یونی ایک کے لیے ہے, براڈ سب کے لیے ہے, ملٹی گروپ آف نوٹس کے لیے. یہ جناب ہاؤ اے کلائنٹ ریزالوز اے نیم, یہ آپ کو بتا رہا ہے فرسٹ. اچھا ایک چیز میں نے یہاں آپ کو بتانی تھی کہ LLMNR ایسے انوائرمنٹ میں یوز نہ کریں جہاں پہ پری ونڈوز وسٹا کلائنٹس بھی لگے ہوئے, لائک ونڈوز XP کا کلائنٹ ہے. اب سوچیں ونڈوز XP کے کلائنٹ کو ایک کمپیوٹر ایکسس کر رہا ہے تو وہ تو LLMNR انیبل نہیں ہے, وہ ریسپونڈ بھی نہیں کرے گا, تو ڈیلے بہت زیادہ آ جائے گا. کمپیوٹر پہلے DNS کے پاس گیا, واپس آیا, پھر LLMNR کی سرچنگ ہوئی ساری. ٹھیک ہے, بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاؤ ٹو ڈسیبل LLMNR if it's not desirable. آپ اس کے لیے سمپلی اوپن کریں گے گروپ پالیسی, اور گروپ پالیسی میں جناب ہم کہاں جائیں گے, ڈیفالٹ ڈومین پالیسی کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں. پالیسیز, ایڈمنسٹریٹو ٹیمپلیٹس, نیٹورک, DNS کلائنٹ, LLMNR. ٹھیک ہے,
टर्न ऑफ मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन, ये बेसिकली ये आपके सामने ये LLMNR के लिए, इसको आप अगर इनेबल कर देंगे इस पॉलिसी को तो LLMNR डिसेबल हो जाएगा। देखिए ना, टर्न ऑफ को आपने यस कर दिया, तो ऐसा एनवायरमेंट जहां पे डिजायरेबल नहीं है वहां डिसेबल कर दें ताकि आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। ओके जी, ये आपको सीक्वेंस उसने बताया कि क्लाइंट पहले लोकल होस्ट नेम देखता है। लोकल होस्ट नेम यानी ये क्लाइंट जब भी किसी को एक्सेस करता है तो पहले अपना नाम देखता है, अपना नाम देखने से इसे पता लगता है कि ये मैं नहीं हूं, ये कोई और है। फिर ये डीएनएस रिजॉल्वर कैशे कंसल्ट करता है, होस्ट फाइल को चेक करता है, वहां से मसला हल ना हो तो डीएनएस सर्वर के, यानी पहले अपना कैशे चेक करता है ना, जो भी क्लाइंट नेम रिजॉल्व कर लेता है वो कैशे में आ जाता है। स्लैश होस्ट फाइल इसलिए लिखा है, आपके पास क्लाइंट पे एक होस्ट फाइल भी होती है। फिलहाल मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं, ये आप याद रखिएगा, किसी और लेक्चर में किसी जगह रेलेवेंट जगह पे हम एंट्री भी करके देख लेंगे। होस्ट फाइल वहीं पड़ी होती है जहां पे मैंने आपको पोर्ट्स वाली सर्विसेज फाइल बताई थी एटसेट्रा की डायरेक्टरी में। इसमें आप किसी भी कंप्यूटर का नेम और आईपी दे सकते हैं, जो भी आप एंट्री करेंगे वो फौरी तौर पे कैशे में लोड हो जाएगी। यानी वहां पे आप लाइक लिखते हैं PC1 और आगे आईपी दे देते हैं, तो उसके राइट आफ्टर दैट अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके IP config/display DNS करें तो वो एंट्री उसमें डिस्प्ले होगी। उसके बाद क्लाइंट डीएनएस के पास जाता है, डीएनएस से अगर मसला हल ना हो तो देन LLMNR किक्स इन, उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो देन नेट बायोस नेम कैशे आ जाता है। यानी इसके बाद फिर नेट बायोस के, ये चारों मेथड नेट बायोस के हैं, नेट बायोस नेम कैशे, विन सर्वर, ब्रॉडकास्ट, LM होस्ट फाइल। होस्ट नेम के लिए याद रखिएगा कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं होती। एक और बात यहां से तय होगी कि हमने लिखा था ऊपर हाउ अ क्लाइंट रिजॉल्व अ नेम, और नीचे यहां पे हमने स्लाइड के टाइटल में हमने नेम की टाइप नहीं बताई। तो अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में जो नेम कंसिडर हुआ है वो होस्ट नेम था, और फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ में जो नेम कंसिडर हुआ है वो नेट बायोस था। तो देयर कैन बी अ केस कि आपकी रेजोल्यूशन अगर होस्ट नेम पे नहीं हो रही तो आप उसे कन्वर्ट कर लें, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उससे कन्वर्ट कर ले किस नेम में, नेट बायोस नेम में, और फिर नेट बायोस के लिए रेजोल्यूशन शुरू कर दे। बहरहाल दीज आर पॉसिबल नेम रेजोल्यूशन टेक्निक्स। ट्रबल शूटिंग नेम रेजोल्यूशन देख लें, कॉमन टूल्स फॉर ट्रबल शूटिंग नेम रेजोल्यूशन आपके पास NS लुकअप है, DNS CMD है, DNS लिंट है, IP config है, DNS सर्वर मॉनिटरिंग है, ये सारे आपके डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इनको हम लेटर ऑन रन भी करके देख लेंगे। ठीक है, इनमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है दैट इज NS लुकअप। NS लुकअप जो है वो चाहे लाइनक्स हो, सनस्फ्लायरस हो, 3com हो, विंडोज हो, हर जगह चलेगा। DNS CMD और DNS लिंट ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑप्शन है, IP config भी माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के लिए ही है, और DNS सर्वर मॉनिटरिंग ये मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं। अगर आप DNS सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाएं तो यू वुड हैव एन ऑप्शन, ये जनाब प्रॉपर्टीज, DNS मॉनिटरिंग, ये मॉनिटरिंग, यहां से आप ये सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये रिजल्ट आपको दिखा देता है। ठीक है, बाकी कमांड लाइन है वो भी हम लेटर ऑन कर लेंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। कंसिडर यूजिंग द न्यू कमांड लेट्स इन विंडोज पावरशेल टू मैनेज एंड ट्रबल शूट DNS। ठीक है, वो कहता है कि आप अपने आप को फेमिलियर करें पावरशेल में जो मौजूद नेम रेजोल्यूशन कमांड्स हैं उनके साथ। ऑलवेज क्लियर DNS रिजॉल्वर कैशे बिफोर ट्रबल शूटिंग, IP config/ फ्लश DNS जरूर करें। यूज द होस्ट फाइल फॉर ट्रबल शूटिंग, अगर आपकी रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है और आप कनेक्टिविटी की तरफ से थोड़ा सा सस्पिशंस में कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद कनेक्टिविटी, रेजोल्यूशन ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि होस्ट फाइल में मैनुअली एंट्री कर लें और फिर आप चेक कर लें, अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो उसका मतलब कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, फिर इशू रेजोल्यूशन का ही है। आइसोलेट अ प्रॉब्लम, कोशिश करें प्रॉब्लम को आइसोलेट करें, क्योंकि इसमें जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे तो जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम नेम रेजोल्यूशन का हो, पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम नेम रेजोल्यूशन का नहीं है बल्कि वो प्रॉब्लम कनेक्टिविटी का है, यानी देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन नेटवर्क, ऑन डाटा लिंक साइट, आपके NIC में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी केबल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइसोलेट करें ताकि आप इस चीज तक पहुंच सकें कि प्रॉब्लम नेम रेजोल्यूशन का है या एक्सेस का है, देन उसे ट्रबल शूट करें। ये जो कमांड लाइंस लिखी हैं ये मैं आपको डिटेल